हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुपर ग्रेड्स कैट बाय टॉप रैंकर्स। आज हम ज्योमेट्री सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इन area of a triangle, first we are going to learn different ways to find area of a triangle, and then on the basis of those concepts we are going to learn few questions from basic to advanced level. Now, how do we find area of a given triangle? There are multiple ways. Let's say this is triangle A, B, and C, and the side length BC is A, the side length AC is B, and the side length AB is C. Also, let's try to draw an altitude from A to BC. This is an altitude. Let's say this point is D. So, how do we find area of a triangle? So, the first way to find area of a triangle, so let's say area of a triangle is equal to, so this is equal to half A into B into sine C. The product of two adjacent side and the angle between them. Okay, this is the angle C. Or we can also write it as half A into C into sine B. A, C, and then sine B, sine of angle B, or half B into C into sine A. So, whenever you have been given two sides and one angle between them, you can use this concept to find area of a triangle. Now, in other way, how do we find area of a triangle? Half into base into height. Now, in that case, let's take base as BC, then height will be AD. So base and their corresponding height into 1 by 2. This is how we can find area of a triangle. Other than this, we can also use S into S minus A, S minus B, S minus C, where S is equal to semi-perimeter, A plus B plus C by 2. This is also known as Heron's formula to find area of a triangle. What else we can use to find area of a triangle? So one other way is finding R into S, where S is same as this one, the semi-perimeter, while R is in radius of the triangle. What is in radius? So if you draw a circle inside the triangle, which is touching all of its three sides, then the radius of this circle is known as in radius. All right. Now, one more way that we can use is ABC upon 4R. Now here, R is equal to circumradius. R is equal to circumradius. What is circumradius? So if we draw, let's say, a circle which is going through three of its vertices, then the radius of this circle, the radius of this circle R is known as circumradius. So using these concepts, we can find the area of a triangle. Now, apart from that, we can also use area of a triangle in right angle triangle. So if we draw a right angle triangle, how do we find area of a triangle? So as these two sides are parallel to each other, if this is A, this is B, we can say area of this right angle triangle will be equal to half into A into B. And if there is an equilateral triangle where all three sides are equal, and this is A, then in that case, area of this triangle, area of this equilateral triangle will be equal to root 3 by 4 into A square. So these are the different ways to find the area of a triangle. As per the given information,
you can use this to find the area of a triangle. Now, let's move on to the questions. Let's start with a very good question. It says, in triangle PQR, angle PQR is 45 degree, angle PRQ is 30 degree, and QR is given, that is 1 plus root 3. What will be the area of triangle PQR? So let's draw a triangle first. As per the given information, we can say that if this side length is QR, this is P, then as per the given information, what we can say that angle PQR, this angle is 45 degree, this angle is 30 degree. QR is given, which is 1 plus root 3. Now, only this much information is given, and we need to find the area of this triangle. At first, it looks like that data is insufficient, but it's not like that. Let's draw a perpendicular length from P to QR. Let's name this point as S. PS. Now, what we can say, triangle PQS will be a right angle triangle where this angle is PQS is 45 degree. Can we say angle QPS will also be 45 degree? If we take this height as H, PS as H, can we say QS will also be H? Right? Apart from that, triangle PSR is also a right angle triangle. अब अगर ये right angle triangle है तो 30, 60, 90 का triangle बनेगा, 30 degree, 60 degree, 90 degree का triangle बनेगा. This is 30 degree, this will become 60 degree. So 30, 60, 90 degree triangle में side का ratio क्या होता है? 1:√3:2. So अगर 30 के opposite में h है तो 60 के opposite में √3 into h हो जाएगा. So this will be h√3. Now according to question, the length of QR, क्या है length of QR? h plus h√3 is equal to 1 plus √3 or h into 1 plus √3 will be equal to 1 plus √3 और यहां से हम कह सकते हैं h will be equal to 1. अब हमें एरिया फाइंड करना है. कैसे फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR? So we can use half into base into height. What is base? We can take base as QR. What is height? Height we can take PS. So what is QR? QR is equal to 1 plus √3. This is given. What is PS? PS is nothing but height h. वो हमने 1 ले लिया. क्या आ गया एरिया? √3 plus 1/2. So that's your answer. Very good question, right? Now, second question based on again similar kind of properties in equilateral triangle. क्या कह रहे हैं? PQR are on the sides AB, BC and AC of an equilateral triangle. तो सबसे पहले एक equilateral triangle draw कर लेते हैं. PQR. अच्छा, PQR ऑलरेडी गिवन है, हमें ABC लेना है, तो ये हमने ले लिया A, B and C. अब ये क्या कह रहे हैं कि PQR are on the sides AB, BC and AC of an equilateral triangle respectively such that PQ is perpendicular to BC. So P हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दिस लेंथ इज Q, दिस पॉइंट इज Q. Then again QR is perpendicular to AC. So Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. QR is perpendicular to AC and then join PR and RP is PR is perpendicular to AB. This is also perpendicular. What will be the ratio of areas of triangle ABC to PQR? If PQR is also an equilateral triangle, तो PQR भी एक equilateral triangle दिया हुआ है. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सारे एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री होंगे, है ना? इन दैट केस अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. फिर से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्रायंगल आ गया.
क्या हम कह सकते हैं कि अगर ये लेंथ AP अगर हमने 1 और समथिंग x लिया, है ना, वैसे अगर यहाँ रेशियो पूछ रहा है तो वी कैन टेक 1 also. If I take this 1, then side length opposite to 60 will be root 3. Side length opposite to 90 degree will be 2. 30, 60, 90 डिग्री में साइड लेंथ का रेशियो 1:√3:2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रख लो। देन अगेन अब ये क्या कह रहा है कि सारे साइड लेंथ इक्वल हैं और ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जो लेंथ PR की है वही लेंथ QR की हो जाएगी, तो ये भी √3 है। इन दैट केस 60 के अपोजिट √3 है, ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो RC 1 हो जाएगा। तो जो साइड लेंथ है AC will be equal to 2 + 1 which is equal to 3, और PR की लेंथ हो जाएगी √3। हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये हो जाएगा √3/4 A² विच इज 3² डिवाइडेड बाय √3/4, इसकी साइड लेंथ है √3। तो यहां से क्या कह सकते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। √3² इज 3, 9/3 is 3, so we can say this ratio is nothing but 3:1. So area of triangle ABC is to area of triangle PQR. This will be equal to 3:1. That is our answer. ये हो, है ना। सो अगेन रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड लेंथ का रेशियो क्या होता है, कभी भी यूज हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट्स P and Q are on AB and AC respectively such that AP is to PB is 2:3। तो एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया ABC, A, B and C। P एक पॉइंट है जिसकी वजह से AP is to PB is 2:3। So P एक पॉइंट है यहाँ पे, AP is to PB is 2:3। If this is 2x, PB will be 3x। और क्या दिया हुआ है, AQ is to AC is 3:7। So AQ is to AC is 3:7। तो अगर ये 3y लेते हैं तो टोटल 7y होगा, that means this will be 4y। Now we need to find the area of triangle APQ divided by area of triangle ABC। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सोच के देखो। हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी जिससे ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है, बट यहाँ पे कोई भी साइड लेंथ की एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है, बट फिर भी हमें रेशियो निकालना है। क्या निकाल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इनटू हाफ। तो इसे लिख सकते हैं 1/2 2x इनटू 3y इनटू साइन A। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इनटू AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5x, AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, सो 7y इनटू साइन A। अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, साइन ए कैंसिल आउट कर सकते हैं, x कैंसिल आउट, y कैंसिल आउट, 1/2 कैंसिल आउट। तो यहां से जो रेशियो आ गया, क्या आ गया हमारे पास, 6/35। तो यहाँ पे हमें ये मालूम है कि पूरी ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो 35 यूनिट्स है। ट्रायंगल APQ का जो एरिया है 6। तो अगर हम इसे 6n मान लें तो व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल सर, जिससे कि पूरा का पूरा 35n हो जाए। तो ये 29n हो जाएगा। तो जो रेशियो हमें चाहिए, क्या रेशियो चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ divided by area of quadrilateral BPQC. This will be equal to 6n upon 29n, which is equal to nothing but 6/20।
तो ये आ गया जो रेशियो हमें चाहिए, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कैट में। और इस क्वेश्चन का सबसे पॉपुलर वर्जन है जहां पे 3 अलग अलग रेशियो गिवन होते हैं और फिर हमें इस ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना होता है पूरे ट्रायंगल के रिस्पेक्टिव, है ना। वो भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस पर आएंगे हम फिर बाद में कभी। क्वेश्चन नंबर 4 says in triangle ABC, AD is equal to 7, AD is given, which is equal to 7 and perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. What is the length of the circumradius of triangle ABC? circumradius की हमें लेंथ चाहिए भाई। इन तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस चाहिए, है ना। जो भी सर्कल बनेगा उसका हमें रेडियस, दिस रेडियस आर चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं? सर्कम रेडियस के बारे में हमें कितना कुछ पता है। तो डायरेक्ट तो ऐसे कोई मेथड है नहीं जहां पे हम सर्कम रेडियस की लेंथ निकाल सके, बट अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट याद हो, हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r। यहां पे सर्कम रेडियस का यूज हो रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? कैन वी से एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या ले लें, BC, इंटू हाइट, हाइट क्या है, AD, डिवाइडेड बाय ABC, सब ऑल थ्री साइड्स क्या हो जाएगा, BC इंटू 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4r। तो यहाँ पे आप देख सकते हो BC BC कैंसिल आउट हो गया, है ना। AD की लेंथ गिवन है विच इज इक्वल टू 7। AD गिवन है, कितना गिवन है, 7। तो अभी से हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि R विल बी इक्वल टू, ये 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम्स 7 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, दिस 7 विल बी कैंसिल्ड आउट, सो R विल बी इक्वल टू 13, राइट। कितने आसानी से आ गया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। इन दिस केस में R बहुत ही इजीली कितना आ गया, 13। हम देख सकते हैं जो BC है वो कैंसिल्ड आउट हो गया, बाकी दोनों साइड की लेंथ हमने लिख दी, नीचे 4r था यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 2 से यहाँ 14 कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम्स, AD की लेंथ 7 है तो वो भी कैंसिल आउट। इस तरह से हमें मिल गया अपना एक सर्कम रेडियस, है ना। ऑल राइट, तो एक और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं है बट चलो ट्राई करते हैं। व्हाट इज द एरियाज, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल that can be inscribed in a square with the side length of 1 centimeter। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ये सारी की सारी लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर है। चलो इसे नाम दे देते हैं वर्टिसेस को ABCD। एरिया ऑफ लार्जेस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम बेस को साइड लेंथ बना के और ये कर दें, बट वहां पे एक दिक्कत है। अगर हम B और C को इक्विलैटरल ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर यहां नहीं पहुंच पाएगा, है ना। जो हाइट होगी, जो अगर हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करें तो ये लेंथ 1 से बड़ी हो जाएगी, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कैसा हम ड्रॉ कर सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल कि मैक्सिमम एरिया मिले हमें? तो देखो, किसी भी स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक रेगुलर पॉलीगन है। तो अगर एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर दूसरा रेगुलर पॉलीगन इंसर्ट करना है, इंस्क्राइब करना है मैक्सिमम एरिया का, तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो स्क्वायर का लाइन ऑफ सिमेट्री या तो वर्टिकली एक लाइन होगी ऐसे, और अभी हमने देखा कि उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है इक्विलैटरल ट्रायंगल
दूसरा जो होगा वो समथिंग लाइक दिस होगा। ये होगी एक लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? जिसके अलॉन्ग साइड अगर हम फोल्ड कर दें फिगर को तो वो टोटली ओवरलैप कर जाए। यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइक दिस। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ए पी क्यू। ए पी क्यू एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे अगर बीपी की लेंथ हमने एक्स ले ली, एपी की लेंथ 1 है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो जो पीसी की लेंथ होगी वो 1 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना? तो यहां से अगेन जो लेंथ यहां है वही लेंथ यहां भी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये अगर एक्स है तो ये भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो साइड लेंथ पी क्यू है वही एपी होगा। वी कैन से दैट 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AP square is equal to 1 square plus x square, and that can also be written as 1 minus x square plus 1 minus x square. ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। हम यहाँ से पी क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं, पी क्यू और एपी इक्वल है तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ से, चलो देखते हैं। 1 plus x square is equal to, this will be 2x square minus 4x minus 2x plus minus 2x minus 4x plus 2, or we can write it as x square minus 4x plus 1 is equal to 0। ये आ गया हमारा क्या, x स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां से हम x निकाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स हम यहां से x निकाल सकते हैं। what will be the value of x? X will be equal to minus b, so this will be 16 minus 4 which is 12 divided by 2। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, ये 12 होता रहेगा क्या, 2√3। इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस √3। x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस √3, बट माइनस √3 तो ले नहीं सकते। 2 माइनस √3 बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, बहुत ही छोटी वैल्यू। जबकि ये जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी है हमारी, राइट? दिस वैल्यू 2 प्लस √3। अच्छा, ये x की वैल्यू निकल के आती है। अच्छा सॉरी, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो दिस विल बी 2 माइनस √3, नॉट 2 प्लस √3। तो x विल बी 2 माइनस √3। वहां से हम एरिया किसका, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो इसकी साइड लेंथ निकाल के, साइड लेंथ क्या हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, इसका स्क्वायर ले लो क्या आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर निकालने पे आ जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 7 माइनस, एक्चुअली ये आ जाएगा 7 माइनस 4√3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4√3। ये आ गई क्या, साइड लेंथ। तो अब एरिया तो निकाल ही सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू √3/4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर, ये क्या है, यही तो एपी है, राइट? तो एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी 8 माइनस 4√3 which will be equal to √3 into 2 minus √3। ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 minus 3, or you can also write it like that। So that is our answer। This is how we find the area of largest equilateral triangle that can be inscribed in a square with a side length of 1 centimeter or 1 unit। ठीक है, बहुत बार इसमें साइड रेशियो भी पूछा जाता है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड द स्क्वायर, और रेशियो ऑफ एरियाज भी पूछा जाता है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द साइड, एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो
सारे क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व होंगे। सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और वहां से फिर प्रोसीड करना है कि कैसे हमें कोई भी गिवन इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है ना। सो विद दिस we are done with area of a triangle. I will keep bringing to you all the type of concept and all the type of questions related to geometry and other part of CAT quantitative aptitude. So keep watching our videos. Thank you.